جی تو ناظرین ہم بریک سے واپس آ گئے ہیں اور اپنی باتیں خوبصورت باتیں اور سانگ کے بارے میں بات کرتے ہیں ہنی خان سے. انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا اور آپ لوگوں کو بہت انجوائے کرایا, اور یہ میں نے بریک سے پہلے بھی بات کی, تو اب چلتے ہیں. جی ہنی, عادل بھی آپ سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. آپ نے بہت آپ سے کہ ایک ماڈل آج کل نیو بہت سارے جنریشن ماڈلز آ رہے ہیں, اس کے اندر ایسی کیا خوبی ہوگا؟ آپ کا لک ہم نے دیکھا ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے, ہم نے بھی یہی دیکھ رہا تھا کہ میں آپ کو فالو کاپی کروں, مگر آج کل نیو ماڈلز میں کیا ایسا ہونا چاہیے؟ آپ کچھ فرسٹ امپریشن تو اس کی اپیرنس, پرسنالٹی, اپنی بلڈ باڈی, اور باقی ہینڈسم لکنگ اسی کو کہتے ہیں ہم. ایک تو اللہ کی دین ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے. اپنا یہ چہرے پہ بڑا اثر پڑتا ہے, جو انسان کے اندر ہوتا ہے نا وہ چہرے پہ بڑا فرق پڑتا ہے, تو اندر سے بھی انسان کو اچھا ہونا چاہیے. صحیح. اور آپ برانڈ کانشیس ہیں, جیسے آپ کہیں جاتے ہیں, کہیں آپ نے کوئی برانڈ والی اچھی چیز دیکھ لی, آپ بولے نہیں مجھے یہ لینا ہے, نہیں مجھے جو مل جائے میں پہن لیتا ہوں. اچھا, اور کھانے میں بھی یہی چیزیں ہیں دونوں کی؟ نہیں, کھانے میں زیادہ تر میں فروٹ اور جوسز. اچھا, یہ چیزیں ہیں. مگر یہ ہے کہ آپ نے ان کا ایک تھوڑا سوال رہ گیا ہے, جو آج کل کی نئی جنریشن ہے نا, آج کل ماشاءاللہ بہت اچھے لڑکے بھی ہیں, بلڈ بھی اچھی سے آپ ہیں ماشاءاللہ, گڈ لکنگ ہو آپ, تھوڑی سی بلڈ بناؤ, اپنی ویٹ لفٹنگ کرو, ایکسرسائز کرو, تو یہی چیز چل رہی ہے. اب دور بہت فاسٹ ہو گیا ہے, پہلے بڑا مشکل تھا میڈیا پہ آنا, اب بہت آسان ہو گیا ہے. اچھا, یہ ہنی اور سنی مجھے دونوں سے سوال ہے. ایک تو ماشاءاللہ نام آپ لوگوں کے اتنے ملتے ہیں, اور پھر آپ لوگ بھائی اتنے, اور ہاں صحیح بات ہے, نام بھی ملتے ہیں, دونوں بھی ملتے ہیں, اور خدا پاک کرے کہ آپ دونوں سلامت بھی رہو اور اسی طرح ہنستے رہو اور لوگوں کو ہنساتے رہو. بہت خوبصورت کام کرتے ہو. میں آپ بلیو کرو سنی, یہ تعارف کی اس کی بات نہیں ہے کہ میں آپ کی تعریف کر رہی ہوں, جہاں ہوسٹنگ آپ کی نہیں بھی بنتی تھی آپ نے وہاں بھی کی, آپ سمجھ گئے ہوں گے, لیکن آپ نے اس پروگرام کو بھی بہت خوبصورت بنا دیا ہے جو نہیں ہوتے. یقین کریں آپ نے بھی دیکھے ہوں گے بہت ساری چیزیں, اور کبھی کبھی بندہ بولتا ہے کہ یار یہ سنی کی جگہ نہیں ہے اور یہاں موجود ہے, اور وہ لگتا ہے کہ نہیں یہ ایک نگینہ تھا اور یہ فٹ ہو گیا اور اس کو خوبصورت کر دیا. بہت خوبصورت بولتے ہو, بہت نالج ہے, اور آپ کی بہت زیادہ آبزرویشن ہے جو میں نے نوٹ کیا ہے. اس نے ماشاءاللہ بڑے بڑے ریڈ کارپٹ ایونٹ کیے, اس نے ملٹی نیشنل کمپنیز کے, کیا بات ہے, میں ٹیم کا سنگرز کے. جی جی, تو یہ کر سکتا ہے, اس میں ایبیلٹی ہے, یہ کر سکتا ہے, اور پاکستان کا ستارہ ہے, پھر کیا آپ کچھ نہیں کر سکتے. اوپر سے پھر کانفیڈنس لیول, پھر پرسنالٹی, اپیرنس, ہر چیز اللہ نے دی ہوئی ہے. بہت زبردست. اور جس کیا ہوتا ہے یہ اسی کا ہی ہو جاتا ہے, جب یہ جہاں پہ ہوتا ہے نا. دیکھیں جب آپ اسٹیج پہ آتے ہیں نا تو آپ وہ لوگ دیکھتے ہیں, پہلے آپ کی لک دیکھتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کی گفتگو سنتے ہیں, تو ماشاءاللہ اس میں وہ چیز ہے. صحیح بات ہے. میں کہہ رہی ہوں کہ ہم نے, آپ تو تھے اس میں, مطلب ماشاءاللہ بہت زبردست آپ نے کام کیا تھیٹر پہ, اور اس نے ایک سانگ پہ ڈانس کیا تھا اور یہ ہمارا شو لے گیا. میں بولا یا اللہ اس کو چیٹر کو کس نے رکھا, یہ پوری مطلب لوگ کھڑے ہو گئے بھائی. آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ مجھے تو چینج کرنے کا ٹائم نہیں ملتا تھا. آپ بلیو کریں میں کپڑوں کے اوپر کپڑے پہنتی تھی, کیونکہ میرے پاس کوئی شارٹ ایسا نہیں تھا کہ میرے بغیر ہو. لیکن اس بات میں بالکل آنےسٹ ہو کر کے دو باتیں ایڈ کرنا چاہوں گا, کہ وہ جو ہمارا پلے تھا, تھیٹر پلے جو تھا بیٹی رانی, اس میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ ایک آپ کا جو ماں کا کیریکٹر تھا آپ اس پہ چھا گئی تھی. اس کا ریزن کیا ہے کہ جو اسٹوری بورڈ کا جو کانٹینٹ تھا نا, جس حساب کا کانٹینٹ تھا اس حساب کی آپ ماں تھیں. کیونکہ آج کل ہمارے یہاں کی جو ماں ہے نا وہ چھوٹے کٹ کی آ رہی ہیں, انرجی لیول کم ہے ان کا, آپ سمجھ رہے, دودھ پینے سے قاصر ہے تو صحت نہیں ہے. تو وہ جو کانٹینٹ تھا اسٹوری بورڈ کا, اس کے حساب سے آپ جیسی جٹی ماں جو ہے نا, ایک تو وہ جچی تھی آپ, نمبر ون تھنگ. اینڈ نمبر سیکنڈ از دیٹ کہ لگی تھی میری ساتھ. ہاں, اور نمبر, اچھا میں بالکل آنےسٹ بتاؤں اپنے پیارے ناظرین کو کہ میں پٹھان ہوں بائی کاسٹ, بٹرنگ کرنا, مکھن لگانا مجھے نہیں آتا. جو حق اور سچ مجھے لگتا ہے میں وہ کہتا ہوں, چاہے کسی کے بھی بارے میں ہو. تو ایک آپ اپنے کیریکٹر میں مجھے بہت اسٹرانگ لگی. ہنی خان بھائی کا جو کیریکٹر تھا, خدا کی قسم میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں اس کے جو ڈائریکٹر تھے نا وہ زاہد شاہ صاحب, صحیح, انہوں نے اپنے آپ کو ببانگے دہل دکھایا کہ آئی ایم دا سم تھنگ, یو نو, بالکل. لیکن ٹون کا بڑا فرق ہوتا ہے. جب یہ بولتے تھے نا تو ان کا جو بیس کوالٹی تھا, اور جب وہ بولتے تھے تو ان کے بیس کوالٹی جو نا وہ ہیوی ہو جاتا تھا. صحیح بات ہے, صحیح بات. تو مجھے ان کا کیریکٹر بھی بڑا اسٹرانگ لگا. بہت اچھا. یو بوتھ آر ڈوئنگ دا ویل
on stage and have done a great job. इंशाल्लाह जिंदगी में फिर एक काम करेंगे. इंशाल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा तो. लेकिन ये है कि हमारा अल्लाह एक जन्नत फरदौस में जगह दे. वो कैरेक्टर पहले एक और कामरान, ओ यस, हाँ वो भी बड़ा अच्छा था. मरहूम वो करता था. लेकिन जब ये हनी आया मैंने कहा यार सिंगर है, फिल्म स्टार है, ठीक है, और बर्गर तरह की इसकी पर्सनालिटी है, ये कैसे करेगा. मैं बड़ी परेशान ना. जब मैंने इसको पहले सीन में देखा ना मैंने कहा देखो अल्लाह उसको तो जगह दे, वो उसने भी बहुत अच्छा किया था. लेकिन जब इसने किया तो कमाल किया, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जबरदस्त. और पूरी टीम ने अच्छा किया, नो डाउट. जैद शाह की पिच वो नहीं है लेकिन काम बहुत अच्छा किया. उन्होंने भी काम बहुत अच्छा किया, बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया. तो इसी तरह हालांकि ये जो मैं एक्टिंग फील्ड में आया, मेरे पीछे फैमिली में कोई नहीं है. अच्छा. मेरे जो वालिद साहब थे वो चैंपियन थे, मोटरसाइकिल चैंपियन. उनका नाम है मकसूद मलिक. अच्छा. उन पे आप एक फिल्म भी आई थी रोड टू सवात. अच्छा. उसमें गाना बड़ा मशहूर हुआ था, ये अदा ये नाज ये अंदा, ये उन्हीं पे पिक्चराइज हुआ था. अच्छा. तो पापा थे चैंपियन, वो एक्टर नहीं थे. अच्छा, एक मिनट, इसमें एक बात और ऐड करूंगा, वो बता नहीं रहे. ये गाना जब इनके बाबा पे पिक्चराइज हुआ ना, तो उसमें जो फीमेल आवाज आप लोगों ने सुनी, हम सब ने सुनी, हेलो हनी, तो उनकी पैदाइश हुई थी. तो फिर इनके पापा ने नाम रखा था हनी. उनको इतना अच्छा लगा था. ये नाम बड़ा उस टाइम पे बड़ा. ये अदा ये अंदाज. तो आदिल ये थोड़ा सा बोले ना, थोड़ा सा बशरत भाई और ये गुनगुना ले, ये याद ताजा हो जाएगी ना. आपके फादर हमारे फादर हैं यार. चले हाँ चले सब मिलके. हाँ माइक ले लें. ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया. आपके प्यार का कुछ भरोसा नहीं, मार डाले ना हमको अदा ये कहे. हो हमने तो छुपाया, अफसाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया. थैंक यू. ये टाइम शॉर्ट है इसलिए. जबरदस्त. अच्छा, इसका ऐसी मैं यादें ताजा किया करो. बिल्कुल. एक मेन मैं आपको बता दूं, इसमें एक रिकॉर्ड कायम किया था वली साहब ने. जो फिल्म के वाइंड अप में दरिया सवात के ऊपर एक वायर बांधी रस्सी, एक पहाड़ से एक पहाड़ पे, उस रस्सी पे स्कूटर चलाई थी. ये रिकॉर्ड कायम ये किया था पाकिस्तान का हाईली रिकॉर्ड था उनका. 1969 में. माशाल्लाह, क्या बात है. जबरदस्त. 1969 में सदर अयूब खान ने उस दौर में कैमरा ट्रिक कैमरे में देख के बोले. 1969 में सदर अयूब खान ने 1969 में कैमरा ट्रिक साबित करने वाले को 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया था. यानी लोगों को यकीन नहीं आ रहा था, तो वो जंग की कवरेज भी रखी है हमारे पास. 1969 में दरिया सवात पे रस्सी बांधी, रस्सी पे स्कूटर चलाई. फिल्म थी रोड टू सवात. ये इनके फादर की क्रिएटिविटी थी. वो डायरेक्टर ने ये बोला था कि दरिया सवात पे से ब्रिज जा रहा था, वो जो लकड़ी के अक्सर होता है अमूमन, तो बोला कि इस पे से तुमने लाना है बाइक को और यहाँ रस्सी बांध के लाना. तो अदाकार कमाल डूबते हुए नजर आ रहा है, वो रस्सी फेंकनी है, वो पकड़ेंगे और आपने बाइक से उनको बचाना है, ऐसे ले जाना है. तो ये उनकी उस दौर में क्रिएटिविटी थी. उन्होंने बोला नहीं मैं ब्रिज पे नहीं लाऊंगा. बोला फिर बोला मैं यहाँ पे वो बांधूंगा, तार बांधूंगा, रस्सी बांधूंगा. तो डायरेक्टर ने बोला, उनसे एग्रीमेंट हुआ. हाँ, डायरेक्टर घबरा गया. बोला नहीं भाई ये जान ये तो घबराने वाली बात. उन्होंने एग्रीमेंट किया कि मैं इसको चला के दिखाऊंगा, आप ये शॉट ले. तो उन्होंने समझ ले जान की बाजी लगाई. हाँ. और फिर वो इतना जुनून होगा. अभी देखिए भी आप सर्च करेंगे नेट पे फिल्म रोड टू सवात, तो उसका वाइंड अप सीन देखें आप, उसमें आएगा ये. क्या दरिया बात उस है. दौर में, उस दौर में. देखें क्या दौर में. बहुत बहुत आला है, बहुत बड़े एजाज की बात है. बहुत जबरदस्त. बहुत इस पे एक क्लैप बनती है. ओ यस यस यस. बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला. जबरदस्त जबरदस्त. आजकल ये हिम्मत कौन कर सकता है कि मौत के मुंह में देखो. नहीं बहुत देखा बड़ी हमने बात. तो आज तक नहीं देखा. नहीं देखिए, मैं आपको बताऊं कि पहले जमाने में ना क्रिएटिविटी होती थी लोगों में, एक नया सोचते थे, अच्छा करना चाहते थे, मेहनती थे, जुनून था. 2000 की दिहाई जब से लगी है ना, हाँ. आप लोगों ने देखा होगा शागिर्दाना बंद हो गए, डायरेक्ट उस्ताद आ रहे हैं. सही बात. हाँ डायरेक्ट डायरेक्ट उस्ताद आ रहे हैं, बनते शागिर्द हैं कि प्लीज जरा हाथ पकड़ लो ये. हाँ. उसके बाद वही उस्ताद होते हैं और आप उनके शागिर्द होते हैं. सही. तो यूथ हो गई चेंज हो. अच्छा, अब जो हमारा मीडिया साइड है, यहाँ पे आज का जो यूथ है वो आर्टिस्ट नहीं आ रहा है. मैं आपको बताऊं, वो पॉलिटिशियंस आ रहा है.
सही बात है, हर बंदे में सियासत है। जो एक्चुअली फनकार है ना वो घर बैठे हुए, जो एक्चुअली फनकार हैं, जिनको एक्टिंग आती है, जिनको काम आता है, वो बेचारे घरों में बैठे हुए इसी हैं, तरह और मक्कार और चोर चकार जो है वो बिजी हैं। यार जिन लोगों को तो शाम मैं भी कहती busy हूँ ना, है। जिन लोगों को मैं कहती हूँ ना आजकल स्ट्रगल बहुत, उन्होंने बेचारों ने स्ट्रगल की, सही है, बहुत स्ट्रगल की। हर बंदे से पूछ, हर बंदा बिजी है, सही लेकिन कह रही होता नहीं है। कुछ सनी कुछ ऐसे भी है, सही कह रही है। बहुत ज्यादा झूठ आ गए, बहुत ज्यादा। हम कहते हैं ना, अक्सर हम हुक्मरानों पर बात ले जाते हैं कि हमारे हुक्मरान ये हैं वो हैं, तो मैं हर प्रोग्राम में ये जिक्र करती हूँ कि हमारे अमाल, हम खुद ऐसे हो गए हैं, तो हुक्मरान भी हम पे वैसे ही आ रहे हैं। सही कह रही है। तो ये थोड़ा सा आप दोनों से मेरा सवाल है कि आप लोग माशाल्लाह स्टार हो, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है पूरी दुनिया में, आप लोगों को कोई किसी तारुफ की तो मोहताज हैं भी नहीं। घर वालों ने कितना साथ दिया, दोनों से मेरा सवाल है। पहले तुम लोगे मैं तो आप दे, आप बड़े हैं भाई, लेडीज फर्स्ट। अच्छा अगर इधर औरतें होती ना तो बोलती आप बड़ी हो, आप बड़ी हो। मैं आपको बताऊं, घर से तो मुझे सपोर्ट नहीं मिली, अच्छा, बिल्कुल नहीं मिली। हाँ, बड़ी कुर्बानियां दी हैं, अच्छा, घर से निकला हूं शोबिस की ओए खातिर, होए घर से निकला भी हूं मैं कई सालों के लिए, और जब बन गया तो फिर वालिद साहब खुश हो गए, चलो यार कुछ बन गया। हाँ, मतलब वो अच्छा, फैमिली फिर डरती है अप्रिशिएट ना। किया, फिर अप्रिशिएट यस, किया। वो डरे हुए थे कि यार कि गलत चक्करों में ना पड़ जाए। हाँ बिल्कुल, हालांकि मैं लड़का होने के बावजूद वो ये सोच रहे थे कि गलत फेल में ना पड़ जाए, क्योंकि बस अल्लाह ने साथ दिया, अल्लाह ने एक साथ दिया, सही हिम्मत बात, पकड़ी, सही बात है। कुछ अच्छे दोस्त भी मिले। आपके और- बच्चे वगैरह कोई इस फील्ड में आए, कोई हाँ, फैमिली? मेरा नहीं, फील्ड में तो कोई नहीं है अभी फिलहाल। अच्छा, फील्ड में नहीं। बेटा है माशाल्लाह, उसका भी हाँ, 2 बेटा है। कमर्शियल किए हैं, लीड मॉडल। माशाल्लाह, माशाल्लाह। शौक है उसको। अच्छा, अब जो इतना नाम बना लिया दोनों ने, देखिए फिर मेरा दोनों से ही सवाल होता है, तो इतना नाम बना पहले लिया, तो सवाल अब में- कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं? नहीं, मैं आपको बताऊं, देखिए जैसे हनी भाई ने अभी बताया अपना, तो जो स्ट्रगल टाइम था ना, मैं आपको बताऊं कि शौक में आपको शोज मिल जाते हैं और छोटे छोटे इवेंट्स मिल जाते हैं, हाँ। वो आपका शौक पूरा होता है। सही, मंजिलें जुनून से मिला करती हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मंजिलें जुनून से मिला करती हैं, और मेरा जुनून ये था कि वालिद साहब मेरे पूरी रात तस्बीहात पढ़ते थे, तहज्जुद पढ़ते थे, वो जागते थे, वो जमींदार आदमी थे, सही, और हमारी जो छत का रास्ता था वो वालिद साहब के कमरे में ऐसे वो बैठते थे पूरी रात, और वो छत का रास्ता भी उनके सामने से जाता था। तो पहले जमाने के जो होते थे ना, वो बाबूजी थे, हम बाबूजी कहते थे उनको, हाँ, और हम 8 भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। ओह, तो अच्छा। उनकी एक डपटी जो है ना, वो सबसे बड़े भाई जो है ना, वॉशरूम जाए बगैर सुसु करते थे एक डांट पे। इतना उनका गुस्सा और रोब और अच्छा, दबदबा रोब था। लेकिन मेरा क्रेज ये था कि मैं इंतजार करता था कि वालिद साहब जो है वो हल्की सी झलक मुंह ऐसे करें और मैं छत पे चढ़ के कूद जाऊं। शो मुझे पता होते थे कि कहाँ कहाँ हो रहा है। अच्छा, ये था जुनून में। जुनून था। अच्छा, जेब में पैसे नहीं होते थे, और मैं ऑनेस्ट होकर के कसम खा के बताता हूँ कि शर्मा हुजूरी जैसे शो अब मिल गया, कहाँ का है जी, ये लाइफ में मेरे ऑन रिकॉर्ड बात है कि आर्टिस्टों की एक बैठक थी, एक मंडी लगा करती थी, हम वहां पहुंचते थे, सारे आर्टिस्ट आते थे, 250-300 आर्टिस्ट हाँ, आते थे। हाँ। वहां से पहले पर्चे बटते थे, अच्छा। एड्रेसेस बटते थे कि भाई हाँ। ये एड्रेस है, यहाँ पहुंचना है। हाँ, तो अब हम न्यूली बॉर्न बेबी थे, हमारे पास तो कोई शो इतनी जल्दी आता नहीं था। बिल्कुल। तो एक बंदे ने आकर के मुझे, जब सब जा रहे होते थे तो फिर मैं खड़ा हुआ हूं, एक बंदे ने आके बोला कि सनी आपने शो में आना है और ये एड्रेस है। तो मेरी जेब में पैसे नहीं है और मैं उससे ये भी नहीं बोल पा रहा हूँ कर्टिसी में कि आप मुझे कुछ पैसे तो दे दें, हाँ, मैं क्यों? टैक्सी करके आ जाऊं। हाँ, वो शो था औरंगी टाउन 10 नंबर का, अच्छा, और मैं खड़ा हुआ था वहां पे अलकरम स्क्वायर पे। तो मैंने उनसे एड्रेस लिया और मैं पैदल चल दिया शो में। ओए होए, और आप यकीन, औरंगी टाउन इतना जुनून। जुनून, आप, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं पैदल चलता रहा, बनारस आया, बनारस से आगे गया। अब वो पान के केबिन होते थे जगह जगह, उनसे पूछ रहा हूँ यार ये 10 नंबर का है, ऐसे चले जाओ, 10 नंबर का है, ऐसे चले जाओ। जाते जब मैं पहुंचा हूँ शो वाली गली में, और उस बंदे ने जिसने मुझे एड्रेस दिया था उसने मुझे बोला कि यार तुम इतना लेट आ रहे हो, सनी की एंट्री कराओ। तो जस्ट मैंने एक गाने पे परफॉर्म किया और फजर की अजान हो गई, मैं इतना लेट पहुंचा था। ये जो आज आपने मुकाम बनाया है ना, जी हाँ। ये जुनून की वजह से मैं समझती हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग के बड़ी मेहनतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और रही बात घर वालों की, तो मैं आपको सच्चाई की बुनियाद पे एक बात बताऊं कि आपके हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, वो शो बिजनेस को कुछ यूं नहीं समझते कि अल्हम्दुलिल्लाह वी बिलोंग टू मुसलमान फैमिली। बिल्कुल, हम फंक्शन लाइन को जस्ट लाइक एंटरटेनमेंट लेते हैं, चिल लेते हैं कि एक रात की बात है, लेकिन अपनी औलाद को जाने नहीं देते हमारे आपके पेरेंट्स। अच्छा, अब होता ये था कि जिस तरह बाबा हमें मना करते थे कि नहीं, डांस बेसिकली वर्ल्ड वाइड एक एजुकेशन है,
डांस में लोग मास्टर्स किए हुए, ग्रेजुएट किए हुए। बिल्कुल। हमारे यहाँ डांस को जस्ट ऐसे लिया जाता है कि जस्ट एंटरटेनमेंट है। अगर किसी अच्छी फैमिली का लड़का आकर के उससे मिल रहा है तो मना कर देते हैं। हाँ, उसको इसी बुरे तरह अल्फाजों में लेते हैं। मैं डिफेंस में एक इवेंट के अंदर होस्टिंग कर रहा था, तो बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली थी जिनका हम शो कर रहे थे। तो हमारे सीनियर म्यूजिशियंस जो वर्ल्ड वाइड घूमे, जिन्होंने पाकिस्तान में मौसीकी का आगाज किया है, उसमें एक हमारे पैडिस्ट थे असलम भाई, असलम चौरंगी नाम था, आज वो दुनिया में नहीं है, अल्लाह गरी का रहमत करे। तो बच्चा आकर के ना उनके पैड को हाथ लगाने लगा, तो मैं लिटरली, क्योंकि होस्ट था मैं वहां, उसका फादर आया, उसने बोला हटो बेटा, ये अच्छी चीज नहीं है, गंदी चीज है। ये जब उसने बोला तो मैंने उसको बुला लिया, मैंने कहा एक्सक्यूज मी। वो आया, जी। मैंने कहा कैन यू टेल मी योर गुड नेम? बोला फला फला। मैंने कहा मुझे एक बात बताएं, आपने बच्चे को इस तरह झड़काया कि जैसे कोई बहुत गंदी चीज है, बहुत बुरी चीज को उसने हाथ लगाया। नहीं यार, ये कोई चीज थोड़ी, कोई काम थोड़ी है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आप क्या करते हो? बोला मैं इंजीनियर हूँ। मैंने कहा पाकिस्तान में इंजीनियर कितने हैं? बोला इतने। मैंने कहा डॉक्टर्स कितने हैं? बोला इतने। मैंने कहा मेहंदी हसन कितने हैं? देख, मैंने कहा मेहंदी क्या हसन कितने बात है, क्या बात है, क्या बात लेवल पे नहीं है आप लोग मादरत के साथ। सही, मैंने कहा महीने जबरदस्त। में आप कितना कमाते हैं? बोला 6 लाख रुपए। खुदा की कसम, मैं रोजाना की बुनियाद पे 2.5-3 लाख रुपए लेके जाता था घर पे। माशाल्लाह तो माशाल्लाह, हम क्या बात है। कंपैरेटिवली अगर चीजों को सोचे ना तो सनी, इसी खूबसूरत बात के बाद मेरा बिल्कुल बात काटने को दिल नहीं Please, चाह please, please, रहा, carry on. बिल्कुल मेरा दिल नहीं चाह रहा, और मुझे बार बार कॉल आ रही है कि प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। बंद करो ये। सही है। आप अपने नाज़रीन को, आदिल आप खुदाफिज करें, आप दोनों खूबसूरत मैसेज दें, और मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं हाथ बांधूंगी कि आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगी। आदिल खुदाफिज करें, फिर सनी का गाना का सुन। वक्त खत्म हो चुका है और मुझे तो बोलने का मौका ही नहीं मिला। इतने सीनियर्स लोग बैठे, मैंने लगा कुछ बोलूंगा, कुछ गलत ही ना निकल जाए, तो मैं तो चुप ही बैठा रहा इसलिए। और बहुत गलत बोलोगे तो सही आएगा, बोला करो। अच्छा, बिल्कुल। तो मैंने यही है कि बहुत कुछ सीखा आप लोगों से, बहुत अच्छा लगा। आप बहुत अच्छे अखलाक के मालिक हैं, और बिशारत भाई बहुत अच्छा प्ले किया आपने भी, और बहुत एंजॉय किया। आज बशारत भाई का सॉन्ग आपने नहीं सुना, ये बहुत मिस किया, लेकिन बातें इतनी थी, वो इतने प्यारे स्टार और इतने प्यारे दोस्त आए हुए थे कि बिल्कुल अभी जाते जाते भी हनी का गाना सुनेंगे। और मैं दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ, मेरे बिल्कुल अल्फाज नहीं है। आखिरी मैसेज आप देना चाहें, फिर जो है सनी का गाना सुने, हनी का गाना सुनेंगे, मैसेज आप, छोटा सा मैसेज। नाज़रीन, मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूंगा कि अपना बहुत ख्याल रखें, अपनों का बहुत ख्याल रखें, और उनका भी बहुत ख्याल रखें जिनका कोई नहीं रखता, यानी कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। सही बात। So love you all, take care to your good care, Allah bless you and your all family member। मैसेज पहले मैसेज ही गाना, पहले मैसेज, एंड पे गाना। मैं खुदाफिज करूंगी, फिर आपका। मैं ये कहना चाहूंगा, जिनके वालिदैन हयात हैं वो उनकी कदर करें, जितनी दुआएं ले सकते हैं उनकी लें, जिनके नहीं है अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मेरी ना वालिदा है ना वालिद साहब है, तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जिनके हैं वो कदर कराएं, ये समझे कि उनकी दुआओं से तकदीर बदल जाएगी आपकी। बेशक, बहुत खूबसूरत बात। और इसी खूबसूरत बात के साथ मैं आज इस प्रोग्राम, खूबसूरत प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगी। जहाँ रहें खुश रहें, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। इसी प्रोग्राम में नए सितारों के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो जाऊंगी। तब तक अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। कदमों को चूमूंगा, मुझे तुम बसाने तेरे कदमों को चूमूंगा, मुझे तुम बसाने रसीदा गीत चाहत का, रसीदा गीत चाहत का, सरा ये गीत गाने दे, सरा ये गीत गाने दे। तेरे कदमों को चूमूंगा, मुझे तुम बसाने दे। कहानी
اور میرے ہونٹوں سے مجھے تو سننے سنانے دے تیرے اور میرے ہونٹوں سے مجھے تو سننے سنانے دے ہزاروں دوریاں میری کئی مجبوریاں میری یہ بندھن توڑ دینے دے مجھے طوفان بسانے دے یہ بندھن توڑ دینے دے مجھے طوفان بسانے دے رسیلا گیت چاہت کا رسیلا گیت چاہت کا ذرا